मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नकली सोना दिखाकर लाखों रुपये लूटने वाली खतरनाक टोली का आज पर्दाफाश। जिला पुलिस ने सिर्फ 2 घंटों में ही इस गैंग को गिरफ्तार किया और इस केस को कामयाबी से हल कर लिया। आइए तफसील देखते हैं। शहर के 50 पुलिस स्टेशन हदूद में एक चौंका देने वाला फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ। सीताराम नगर कॉलोनी की रहने वाली वनिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 4 अफराद उनके घर आकर सोना फरोख्त करने का झांसा देते हुए 5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की। इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला कि ये गैंग गुंटूर आंध्र प्रदेश से आकर निजामाबाद में डेरा डाले हुए था और आवाम को जाली सोना दिखाकर लूटने की कोशिश कर रहा था। ये गिरोह शिवाजी नगर में एक किराए के कमरे में कई दिनों से मनसूबाबंदी करता रहा। मुलजिमान ने पहले मुतासरा फैमिली के मिल्क शॉप पर आकर एतमाद हासिल किया, फिर 350 ग्राम का नकली सोना बिस्किट असली सोना बताकर 5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। नॉर्थ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर बी श्रीनिवास और SIM गंगाधर की खुसूसी टीम ने खुफिया इत्तला पर डिचपल्ली रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शिवया, अंजम्मा, अंकम्मा, गंगा राजू शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह गैंग पहले भी इसी तर्ज के फ्रॉड में मुलविस रहा है। मुलजिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद, 960 ग्राम नकली सोना, मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस मौके पर ACP राजा वेंकट रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अवाम से धोखा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। निजामत पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए हर लम्हा मुस्तैद है और ऐसे वाक़यात पर फौरी कार्रवाई हमारी अवलिन तरजीह है। 29/11/2025 సాటర్డే రోజు మనకు రాత్రి 9:30 వనిత అని చెప్పేసి లేడీ ఒక మిల్క్ సెంటర్ సీతారాం నగర్ కాలనీలో రన్ చేస్తూ ఉంది. ఆమె 5th టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది వ్యక్తులు, ఒక 4 వ్యక్తులు గత వారం రోజుల నుంచి ఆమె దగ్గరికి మిల్క్ కొంటామని చెప్పి వచ్చి పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర కొంత గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి, అవి తవ్వకాలలో దొరికినాయి, మేము తక్కువ రేటుకి అమ్ముతామని చెప్పేసి గత వారం రోజుల నుంచి ఆమెను దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ మాటలను నమ్మి ఆమె ఆ బంగారాన్ని వీళ్ళు ఫస్ట్ ఒక మోడల్గా కొంత బంగారం చూపించి, బిస్కెట్ చూపించి దాని నుంచి కట్ చేసి కొంత భాగం ఇచ్చి చెక్ చేసుకోమంటే ఆమె చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అది నిజమైన బంగారం అని అనుకుని, ఇది యాక్చువల్గా మార్కెట్లో కిలో బంగారము దాదాపు 1.25 ఉంది, 1.25 crores ఉంది, 1.25 lakhs ఉంది. అయితే వీళ్ళు దాన్ని 20 లక్షలకే కిలో బంగారం ఇస్తామని చెప్పేసి ఈమె నమ్మించారు. ఈమె దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడంతో లాస్ట్ 2-3 డేస్ నుంచి ఆమె ఒక 5 లక్షల రూపాయలు జమ చేసుకొని ఒక 33 తులాల బంగారం ఇస్తామని నమ్మించి ఆమె దగ్గర చూపించి బంగారం ఒక బిస్కెట్ కట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె 5 లక్షల రూపాయలు పే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చూసుకుంటే ఆ బంగారాన్ని చెక్ చేస్తే అది ఫేక్ గోల్డ్ అని ఆమెకు తెలిసి ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఇమీడియట్గా నార్త్ రూరల్ CA ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస్ గారు, అలానే SHO గంగాధర్, మరి టీం రాజేశ్వర్, రాజారెడ్డి అందరూ కూడా అలర్ట్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకుని అన్ని బస్ స్టేషన్స్, రైల్వే స్టేషన్లో వీళ్ళ గురించి చెక్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చెక్ చేసే భాగంలో డిచ్పల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర వీళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని అదుపులను తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళను విచారించినప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా గుంటూరు వాస్తవ్యులు, గుంటూరు సంబంధించిన ప్రాంతానికి చెందినవారు. దీంట్లో మెయిన్గా శివ, అంకమ్మ, అంజమ్మ, గంగరాజు ఈ 4 ఒక టీమ్గా గత 4 నెలల నుంచి టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి వీళ్ళకు ఈ 4 ఫేక్ గోల్డ్ బిస్కెట్లు వీళ్ళు ఒక పర్సన్ నుంచి అక్కడ ఎక్వైర్ చేసుకుని 4 నెలల నుంచి వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ఇంకా ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయనేది విచారణలో భాగంగా తెలుస్తుంది.
దాంట్లో ఇంతకుముందు ఇక్కడ అంకమ్మ ఇక్కడ పనిచేసింది కొన్ని సంవత్సరాల కిందట, ఇక్కడ కూలీగా లేబర్గా పనిచేసే నిజామాబాద్కి. ఆమె కొంత ఈ నిజామాబాద్ ప్రాంతం పరిచయం ఉండేసరికి వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని నిజామాబాద్ ప్రాంతానికి 20 రోజుల కిందట వచ్చి వీళ్ళందరూ కూడా శివాజీ నగర్లో ఒక రూమ్ తీసుకొని రెంట్కు ఉండి వీళ్ళు ఎవరిని మోసం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో డైలీ వాళ్ళ ప్రయత్నంలో భాగంగా తిరగడం జరుగుతుంది. దాంట్లో వీళ్ళకి వనిత అనే మిల్క్ సెంటర్ అమ్మాయి పరిచయం కావడం, ఇలా మోసం చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ 1 కేజీ ఫేక్ గోల్డ్ బిస్కెట్లు మొత్తం కూడా సీజ్ చేయడం, అదేవిధంగా 5 lakhs రూపీస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళ ఇంకా అఫెన్సెస్లో వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండొచ్చు, దాని గురించి మనం విచారణ చేపట్టాము. మిగతా ప్రాంతాలు వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే మూవ్ అయినారో అక్కడ కూడా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ సంప్రదించడం జరుగుతుంది. అందరి ప్రజలకు ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇలాంటి నేరాలు మనకు రిపోర్ట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి గ్యాంగ్లన్నీ కూడా పర్టికులర్గా రాజస్థాన్, తర్వాత ఢిల్లీ గ్యాంగ్, కర్ణాటక, బీదర్లో ఇట్లాంటి గ్యాంగ్స్ ఇంతకుముందు మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఈ గ్యాంగ్స్ కూడా సేమ్ ఇదే మోడస్ ఆపరండి. వాళ్ళకు తవ్వకాలలో బంగారం బిస్కెట్లు దొరికినాయి, తక్కువ ధరకి ఇస్తామని చెప్పేసి నమ్మించి మోసం చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరికీ విన్నపం ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిని నమ్మొద్దు. ఇలాంటి గ్యాంగ్స్ ఎరవేసి మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కొట్టేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా తక్కువకు వస్తుందని చెప్పేసి ఆశపడి మోసపోవద్దని విన్నవిస్తున్నాం. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినా లేదంటే ఎవరైనా అప్రోచ్ అయినా కూడా పోలీస్కి ఇమీడియట్గా ఇంటిమేట్ చేస్తే మనం ऑफेंस जरगకుండా నిరోధించినట్టు అవుతుంది. एजाज अहमद मसूद की जानिब से मनादिर चेयरमैनों को तहनीत। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद व एकजहती का मुजाहरा वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर कई अहम अहबाब मौजूद थे। कांग्रेस जिला तर्जुमान एजाज अहमद मसूद के दफ्तर पर आज मुख्तलिफ मनादिर के चेयरमैनों की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मंगी मधु चेयरमैन शंभुगुड़ी, एल प्रमोद चेयरमैन झंडा गली टेम्पल, भंडारी नरेंद्र चेयरमैन गोल हनुमान शामिल थे। उनकी बाकसरत शालपोशी व कुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन BL राजू, सतीनाला शिवा, बालकिशन, साबिक कॉर्पोरेटर राज गगन, करुणाकर के अलावा सईद बिन अली, सईद बिन हमदान, अफसर खान, मिर्जा मोइज बेग, M.A. सलीम, मोहम्मद नवीद अहमद, MM कलीम, मोहम्मद आरिफ, शेख लयक, मोहम्मद फयाज के अलावा दीगर शरीक थे। मोहम्मद एजाज अहमद मसूद ने कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर सियासी पार्टी है जो तमाम तबकात के साथ इंसाफ व रवादारी को अहमियत देती है, लेकिन दौरे हाजिर में चंद तंग जहन लोग हिंदू इत्तेहाद व एकजहती और मोहब्बत व उख़्वत के माहौल को ख़राब करने और मुनाफरत को भड़काने की साजिश कर रही हैं। जबकि इस नाजुक मौके पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़ियादत में मोहब्बत के माहौल को परवान चढ़ाने, इत्तेहाद व एकजहती को मजबूत करने के लिए सरगर्म है। आज की ये तहनीती तकरीब उसी जज्बे की मजहर है। उन्होंने तमाम चेयरमैन मनादिर को दिली मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि ये लोग फिरका वाराना माहौल को खुशगवार रखने में अहम रोल अंजाम देंगे। फ्लोरेसेंट हाई स्कूल में इनामी तकरीब, तलबा का शानदार मुजाहरा, शहर के अहम कायदीन व सहाफती शोबे में अवार्ड्स पेश किए गए। फ्लोरेंस हाई स्कूल नागाराम में तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इनामी तकरीब की निगरानी स्कूल करस्पॉन्डेंट मलिक मजहरुल्लाह खान ने की, जबकि सदारत के फराइज मलिक जमील खान ने अंजाम दिए। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर अजीम मलिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम के मेहमानान ने खुसूसी में मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस, मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम TV और मोइन यूनुस कांग्रेस सिटी सदर के अलावा बुजुर्ग मजलिसी कायद M.A. खादर शामिल थे। उनकी नासाजी सेहत की वजह से उनके कायम मुकाम के तौर पर उनके फर्जंद अजीम बाबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। कमसिन तलबा की बहुत बड़ी तादाद ने कई अल्फाज को मुकम्मल स्लिंग और मानों के साथ याद किया। इस प्रोग्राम में मुजाहरा भी किया। ये प्रोग्राम फ्लोरेंस स्कूल इंतजामिया ने ऑल इंडिया साउथ जोन स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के ताउन से किया। शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा को मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम भी अमल में लाएगी। बादअज़ां मेहमानों को ऑल इंडिया साउथ जोन स्किल डेवलपमेंट और फ्लोरेंस इंतजामिया की जानिब से उनकी खिदमात के सिले में अवार्ड भी पेश किए गए और शालपोशी की गई। मोहम्मद शकील अहमद को सियासी, समाजी व मिली शोबे जात में नुमाया कारकर्दगी पर, मोहम्मद नईम खमर को सहाफती, अदबी, तालीमी शोबे में खिदमात पर और मोइन यूनुस को समाजी, सियासी और दीगर खिदमात के शोबे में और खुसूसन मोहम्मद अब्दुल खादर को
جرات مندانہ سماجی و ملی خدمات اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں اولیاء طلبہ کی بھی بہت بڑی تعداد شریک تھی۔ علم کی اہمیت کیا ہے اس کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ علم کے لیے، آپ کے علم کے حصول کے لیے اگر آپ کو دوسرا مقام تک بھی سفر کرنا پڑے، حتیٰ کہ اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے، یا بہت ہی پیریڈ تھا جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ سے چین بہت دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو علم حاصل کرنا ہے اور چین تک بھی سفر کرنا ہے تو چین تک بھی سفر کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ قرآن کی جو پہلی آیت ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ تو ہم کو پہلی شرط یہ عائد کر دی گئی ایمان کے ناطے ہی کہ تم بھی علم حاصل کرو۔ اب رہا سوال علم کیا ہے، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو علم یہ ہے کہ ہم کو جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو اس بات کو جاننا ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے کس طرح چل رہی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، اور اس دنیا میں جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے اس کو اختراع کرتے ہوئے ہم اس کو جدت کیسا لا سکتے ہیں، اس کو ترقی کیسا دے سکتے ہیں، اس کو چیزوں ڈیولپ کرتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم۔ اس میں جتنا اضافہ کرتے جاؤ وہ چیز کم ہے۔ تو جو ہمارے یہاں پر جو پروگریسو انتظامیہ کی جانب سے جو اسکول کا انتظامیہ ہے، میں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے، بہت سی اسکول میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بہت کم موقع پہ بات کرتا ہوں، اور جب بات کرتا ہوں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ جو انتظامیہ کی جانب سے یہ پروگرام ترتیب کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کا آپ لوگوں کو عمل لانا نہیں ہوگا۔ جب عمر کے حصے میں پہنچیں گے جب شعور آپ کو چھوڑا تو جب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سامنے ہم پہ کیا احسان کیا تھا، ہم کو کس روڈ پہ ڈالا، ہم نے کیا کیا سیکھا، جب آپ کو اس کا احساس ہوگا، جب آپ کو اپنے ساتھ کی قدر ہوگی۔ تو جو چھوٹے سے انداز میں آپ کو ایک ایک لفظ کے جو سو معنی سکھانا ہے، ایک ایک لفظ کے جو سو جو سو آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے، یہ جو فیوچر میں آپ کو آگے چل کے جب آپ اسکول کو جو سو پار کریں گے، ہائی اسکول جائیں گے، پھر اس کے آپ کے کالجز جائیں گے، پھر جو سو اس چیز کی بہت اہمیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ وہاں مسابقتی ماحول شروع ہوگا، وہاں مقابلہ ہوگا، آپ کو مقابلہ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عادت آپ کی وہ اگر برقرار رہی، اس میں آپ نے اپنی جدت سے، اپنی جو ذہنیت سے اگر اس میں ترقی لائی تو آئی ایس کا ایگزام یا آئی پی ایس کا ایگزام یعنی کوئی بھی سروسز کا جو معاملہ ہو اس کو کریش کرنا اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یقیناً یہ جو ایریا میں یہ لوگ چلا رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ اسکول مینجمنٹ کرنا یہ بہت کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ پھر بھی جب ہمارے پیک ٹائم لوگ جنرلی ایک عمر کا پیک ٹائم ہوتا ہے 20 سے 40 سال کے درمیان، جب ہم یہاں آتے تھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آج الحمدللہ بہت ایسے مواقع آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں، جیسے فلورنس جو ہائی اسکول جو ہے یہ اس ایریے میں لے کے چل رہے ہیں، یہ بہت مبارکباد ہے، اور یہ مینجمنٹ کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے فلورنس ہائی اسکول والے جو آپ کو اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے ایسے ایریے میں اسکول چلا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے پیرنٹس بھی اپنے آپ کو قربانی دیں، اور قربانی دیں گے تبھی آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ یقیناً اگر آپ قربانی دیں گے تو آپ کے بچے بڑے ہو کر یقیناً آج کے زمانے کے حساب سے وہ کمپٹیٹو زمانہ ہے، اس حساب سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو منوائیں گے اور آپ کا نام بھی روشن کریں گے، اور وہ اپنی زندگی کو بھی ایک اچھے طریقے پہ، ایک اچھے راستے پہ لے چلیں گے والے نا، کیونکہ اپنے خاندان میں کیونکہ زیادہ تر مینارٹی کے بچے تو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ اپنے کئی بڑے لوگ نہیں پڑھے والے رہتے، وہ لوگ کو موبائل دو اور آپ لوگ کو موبائل دو۔ فاسٹ کون چلاتے؟ دادا دادی فاسٹ موبائل چلاتے، آپ لوگ فاسٹ چلاتے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے کو اس کی نالج ہے۔ اب تم پڑھیں گے تو تمہارے کو نالج دیں گے آنے والی زندگی میں۔ کل کے دن آپ کے بچے یہ نہیں بولنا کہ ارے ہمارے ڈیڈ موم وہ لوگ سلو ہے، آپ ان سے فاسٹ رہنے کے لیے تعلیم حاصل کرو۔ بہت سارے اسکول ہیں پیرنٹس کے کہاں تک پڑھے والے پوچھ کے بچوں کو ایڈمیشن لے رہے، تو بچوں کو اور پیرنٹس کو دونوں کو پڑھنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔
ऐसा था कि पहले जमाने में बाबा नहीं पढ़े, बच्चा आगे बढ़ रहा, अब बाबा भी पढ़े वाले रहना पड़ता, बच्चे भी पढ़े वाले रहना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आने से पहले ही आप लोगों को वादा करा था कि 2 मिनट में वापस हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे आली जनाब शकील साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्कूल हुए, फिर हमारे नईम कमर साहब भी स्कूल हुए, क्योंकि बच्चे जो मिलजुल हो जाते, क्योंकि स्कूल से बढ़ के उनको प्राइजेस के ऊपर रहता। तो मुझे जो मौका दिया गया स्कूल की तरफ से, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन, बहुत प्यारा है। और मैं ऐसे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल सर को और स्कूल के इंतजामिया को बोलना चाह रहा हूँ कि हुकूमत कांग्रेस पार्टी की है, तो आप हमसे क्या काम हो रहा बिना झिझक, जैसा आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाए, कभी भी आप हमारा हाथ पकड़ के काम ले सकते। जबतिया के करीब वाक़ एक मंदी से मुतासिर बाजार में मुहिम आतिशबाजी, 30 दुकानें जलकर खाकिस्तान, 1 करोड़ से जायद का नुकसान। करीमनगर जिले के जगत्याल के करीब कोंडागुट्टा में वाक़ आरजी दुकानों में खौफनाक आतिशबाजी का हादसा पेश आया। आग इतनी बेकाबू थी कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल साबित हुआ। आग ने करीब 30 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों ने जगत्याल फायर ब्रिगेड को इसकी इतला दी, मगर फायर इंजन खराब हो जाने से मुश्किलात पेश आईं। बाजिजा कोरटले से 2 फायर इंजन तलब किए गए, मगर उस वक्त तक 30 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गईं और नुकसान का तखमीना 1 करोड़ रुपए से जायद बताया गया है। यह हादसा अभय अंजना स्वामी मंदिर के पास वाक़ दुकानों में पेश आया। आवाम ने महकमा जाती गफलत व लापरवाही और बर वक्त मदद में नाकामी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। आदिलाबाद जिले में बू चौराहे पर एक खौफनाक हादसा, बस और लॉरी के तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। ड्राइवर की लापरवाही हादसे का सबब, पुलिस का कयास। हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली एक खानगी बस इतवार की सुबह निरालीगुंडा मंडल जिले आदिलाबाद में बोथ एक्सरोड के करीब नेशनल हाईवे 44 पर एक लारी से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि लारी और बस दोनों को शदीद नुकसान हुआ और इस खौफनाक हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने शक का इजहार किया कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से यह खौफनाक हादसा पेश आया है। पुलिस ने जख्मियों को आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है और डॉक्टरों ने इनकी हालत को तशवीशनाक बताया है। एक ज़ईफ बेसहारा खातून का मकान नज़र आतिश, घर का तमाम सामान और नकद रकम के अलावा तलाई जेवरात जलकर खाकिस्तान। मजलिस कायदीन ने इमदाद की और मुमकिना ताउन का तयक्कुन लिया। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या शहर के डिवीजन 25 कोट गली में पेश आया। एक गरीब मुस्लिम खातून का मकान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपेट में आ गया और घर का मुकम्मल साजो सामान जलकर खाकसार हो गया। इतला मिलते ही सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर जले हुए मकान का जायजा लिया और मुतासिरा बेवा खातून सैयदा जाहिदा बेगम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। बताया गया कि सैयदा जाहिदा बेगम के 2 लड़के थे जिनका इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी पोतरी सैयदा रुखसार उम्र 10 साल के हमरा एक छोटे से किराए के मकान में अपनी गुजर बसर कर रही थी। कल वो अपनी पोतरी के हमरा किसी शादी की तकरीब में जाने के बाद मोहल्ले के अफराद ने इनके मकान को आग लगने की इतला दी। मकान में मौजूद 2,80,000 रुपए नकद रकम के अलावा 1 तोला सोना और 5 तोले चांदी के अलावा घर का तमाम साजो सामान यहाँ तक के राशन भी आग की जद में आकर मुकम्मल तबाह हो गया। गमगीन बेवा खातून
اور ان کی پوتری کی حالت زار اور آگ کی زد میں آئے مکان کی تباہال صورتحال کو دیکھنے کے بعد نظام آباد کے مجلسی وفد نے ان کی مالی امداد کی اور محکمہ ریونیو کے عہدیداران بالخصوص ایم آئی سے بات کرتے ہوئے واقعے کا پنجنامہ کر کے ضلع کلکٹر کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے پر زور دیا تاکہ ریاست حکومت کی جانب سے غریب بیوہ خاتون کو امداد دلانے کی کوشش کی جا سکے۔ صدر سیدی مجلس نے کہا کہ انشاءاللہ مجلس کی جانب سے ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی تحریری نمائندگی بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فورٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں سے بھی بات کرتے ہوئے اس افسوسناک واقعے کی جامع تحقیقات کرتے ہوئے FIR درج کرنے پر زور دیا گیا۔ غریب بیوہ خاتون سیدہ زاہدہ بیگم نے مجلس کی جانب سے بر وقت ان کے گھر پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے اور مالی مدد کرنے پر صدر کل مجلس بحر اسد الدین اویسی رکن پارلیمان اور نظام آباد کے مجلسی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس محمد شکیل احمد، ضلع صدر محمد فیاض الدین، جنرل سیکرٹری شہباز احمد، جوائنٹ سیکرٹری اور سینئر کارپوریٹر سید اعجاز حسین، سابقہ کارپوریٹر محمد ریاض احمد، عبدالسلیم، عبدالعلی، ارشد پاشا کے علاوہ خلیل احمد، عبداللطیف، عمر فاروق، محمد حاجی و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مکان جل گیا ہے رات میں اچانک، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، صرف آنکھ کے کپڑے سے دوسرا کچھ نہیں ہے، سب اناج وغیرہ سب تھوڑے بہت پیسے تھے، پیسے وغیرہ سب جل گئے، رات خاک بن گئے پورے۔ مہربانی کر کے یہ ہماری پارٹی والے آئے تھے، کچھ مدد کرے ہماری، مہربانی کر کے آپ لوگ بھی کلکٹر صاحب کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگ بھی کچھ مہربانی کرے تو مہربانی ہوگی، مدد کرے تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ مکان میں ہوں میں، کوئی مکان بھی دلا دے تو مہربانی ہوگی، آپ کے سہارا ہو جاتا میرے کو رہنے کے بعد۔ مکان نہیں رہنے سے تو ان گھروں میں کرایے سے پھرنا پڑ رہا میرے کو۔ اب یہاں کے لوگ کم کرایے پہ دیے تھے میرے کو مکان، میری مجبوری دیکھ کے اللہ تعالیٰ وہ بھی میرے کو نہیں سر کا ٹھکانا کر دیا۔ بچی رہتی، 2 لڑکے تھے گزر گئے، یہ بچی ہے، یتیم بچی ہے، پوتری میری بچی کی پرورش میں کرتی، میرے پاس رہتی بچی، میں بچی، دونوں مل کے زندگی گزار رہے۔ محلے والے سب مدد کرتے میرے کو، مسجد والے محلے والے مدد کرتے، یونین پارٹی کی جانب سے آئے تھے، صدر صاحب وغیرہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، مدد کرے میری۔ اور مہربانی کر کے آپ بھی گورنمنٹ کی جانب سے کلکٹر صاحب سے گزارش کر کے مدد کیجیے میری۔ اسد صاحب کا اور یونین پارٹی والوں کا سب کا شکریہ، اور میری جانب سے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں اس کی طرف سے، آپ لوگ بہت مدد کریں میری۔ ظاہر بیوہ خاتون کا مکان آتش زدگی کا شکار، سوائے جسم کے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں بچا۔ حافظ محمد لائقہ نے جائزہ لیا اور حکومت مشیر محمد علی شبیر سے نمائندگی کی۔ کوٹ گلی کی رہنے والی ضعیف مسلم بیوہ خاتون زبیدہ بیگم، جس کا کوئی پرسان حال یا کفالت کرنے والا نہیں ہے، اپنی یتیم پوتی کے ہمراہ ڈویژن 25 کوٹ گلی میں رہتی تھی۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کے مکان میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا اور ان کے مکان کا پورا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ بتایا گیا کہ انہوں نے بڑی ہی مشکلوں سے پائی جوڑ کر 2,80,000 روپے اور 1 تولہ سونا اور 5 تولے چاندی جمع کر رکھے تھے تاکہ پوتی کی شادی کے موقع پر یہ کام میں آئے، مگر ان کا خواب اور جدوجہد چکنا چور ہو گئے اور تمام رقم اور سب کچھ جل کر خاکسار ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ اب ان کے پاس بچھانے کے لیے بستر، پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے برتن کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ ضعیف خاتون بالکل ہی بے آرو مددگار ہو گئی ہے، اب ان کا گزارا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اطلاع ملنے پر نائب صدر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لائق خان اپنے رفقا کے ہمراہ وہاں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا اور حکومتی مشیر محمد علی شبیر کو ان کی صورتحال سے واقف کروایا اور ممکنہ سرکاری امداد کروانے کی خواہش کی۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے ممکنہ سرکاری امداد کے علاوہ اپنی جانب سے بھی امداد کا تیقن دیا۔ ساتھ ہی حافظ محمد لائق خان نے ضلع کلکٹر سے بھی اس بیوہ خاتون اور ان کی 10 سالہ یتیم پوتری کے لیے سرکاری امداد کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نظام آباد میں محلہ کوٹ گلی ہے، یہ نظام آباد شہر کا قدیم محلہ ہے اور بلدیہ کے حساب سے وارڈ نمبر 25 ہے۔ جناب جاوید صاحب، شیخ جاوید صاحب کا یہ مکان ہے جو آپ ابھی دیکھا ہے کہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ وہ مکان میں یہ کرائے سے رہنے والی ایک ضعیف اور بیوہ خاتون ہیں جن کا نام محترمہ زاہدہ بیگم ہے۔ ان کے ساتھ یہ ایک بچی بھی ہے، معصوم، گھر میں رہتی تھی۔ یہ لڑکی بھی بتایا جا رہا ہے کہ یتیم لڑکی ہے، ان کو بھی والد صاحب نہیں ہے اور یہ خاتون بھی بیوہ ہے اور بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں یہ لوگ گزر بسر کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کا مکان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہم حکومت کے ذمہ داران سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کا مکان اثر و تعمیر کیا جائے اور اسی طرح نظام آباد شہر کے
मुतवम्मिलीन तबका मालदार अहबाब अहले खैर अहबाब से भी अपील करते हैं कि इनका देखिए पूरा साजो सामान जल चुका है, ये कपड़े हैं और बावर्ची खाने की भी हालत बहुत बुरी है, वो भी जल गई है। इनकी माली इमदाद करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ भी होगा, जो भी मुमकिन होगा, जो भी ताउन होगा करेंगे। और साथ ही साथ निज़ामबाद शहर के ज़िम्मेदारान से भी अपील करते हैं कि ये एक मुस्तहिक ख़ानदान है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद की जानी चाहिए। हम अभी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी बात किए हैं, ख़ास तौर से भी ये खातून से मोहम्मद अली शब्बीर साहब से फ़ोन पर बात कराए। उन्होंने कहा कि सरकारी इमदाद जहाँ तक हो सके वो फ़ौरन इनकी कराएंगे मदद, और साथ में अपना ज़ाती भी ताउन करने का तयक़ुन दिया है। मैं बस्ती के लोगों से भी कहना चाहूँगा, आसपास में जो महल्ले के जैसे कोटगली के अलावा फुलांग हैं और दीगर महल्ले जात है, उसमें जो जी असर और मालदार अहबाब है, इनकी इस वक्त ताउन कीजिए। ये ख़ानदान की भी, ये लोग इंतहाई गरीब है, और ये जो मकान के साहिब मकान है शेख जावेद साहब, इनका मकान तामीर करने भी ताउन करना चाहिए। आज इनकी बहुत ही खस्ता हालत है, और ऐसे मौके पर जबकि इनका मकान साजो सामान सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गया है, इंसानी बुनियादों पर हम सब इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। फोन नंबर पर सुन सकते हैं, गूगल पे फोन पे है नहीं, नंबर ये बताएंगे, आप सुन लीजिए। वो नंबर के जरिए फोन करके आके आप इनकी मदद कर सकते हैं। नंबर बोलो बेटा आपका, फोन नंबर 8008597428। और एक बार बोलो 8008597428। पूरा जमात इस्लामी निजामात की जानिब से 10 रोजा हमसाया मुहिम के तहत आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। अहमदपुरा जमात इस्लामी निजामात की जानिब से जारी 10 रोजा हमसाया मुहिम के तहत बाद नमाज मगरिब मस्जिद मुस्तफ़ा में मोहल्ले के पड़ोसियों पर मुश्तमल एक खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का आगाज अब्दुल करीम की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मादज़ा अमीर मुकामी जमात इस्लामी अहमदपुरा अब्दुल रहीम ने जमात इस्लामी का तारुफ पेश करते हुए मुहिम के मकासद पर रोशनी डाली। इस मौके पर मेहमान मुकर्रर मौलाना मिर्ज़ा जावेद अहमद बेग उमरी, इमाम खतीब मस्जिद रज़ा बेग ने पड़ोसी के हुकूक़ के उन्वान पर तफसीली खिताब फरमाया। उन्होंने इस्लामी तालीमात की रोशनी में पड़ोसियों के बाहमी ताल्लुकात, हुकूक़ की अदायगी और मुआशराती हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम में मोहल्ले के 100 से ज़ायद पड़ोसियों ने शिरकत की। रुफ़क़ाए जमात इस्लामी में अनवर खान, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, अब्दुल मलिक ज़ाकिर, अब्दुल मन्नान, अलीमुद्दीन, इक़बाल अहमद, मुमताज़, रहमतुल्लाह बेग, मुजाहिद इक़बाल, वसीम इक़बाल, उबैद, हफीज़ समेत दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। मुहिम के तहत आइंदा दिनों में भी मुख्तलिफ आगाही व समाजी हम आहंगी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। अपने घर के जितने अमराज है, सामान है, रोजमर्रा की काम की चीजें हैं, वो उठाकर रोड पर रख दिया। बाहर आने जाने वाला पूछ रहा है क्या बात है, घर क्यों खाली कर रहे हो, क्या मसला है? हर आने जाने वाला को एक ही जवाब दिया उन्होंने कि मैं रोज से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं घर खाली कर रहा हूँ। ये कुछ लम्हों के बाद की बात है कि वो पड़ोसी को इल्म हुआ कि उसकी वजह से ये सामान ऐसा बाहर रखा गया। फौरी आता है, माफी चाहता है और कहता है कि आइंदा मेरी जात से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम अपना सामान अपने घर के अंदर ले जाओ। न झगड़ा हुआ, न लड़ाई हुई, न गाली गलौज हुई, न पुलिस तक जाना पड़ा, न अदालतों के चक्कर काटने पड़े। एक छोटी सी हिकमत अमली से आपस के रिश्तों को मोहब्बत में अल्लाह के रसूल ने बांट दिया। आज की दुनिया में भी हमारी जो रोजमर्रा की है, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि पड़ोस की मामूली तकलीफ पर हमारे अंदर सब्र का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है। हम मुकद्दमात रखने लगते हैं, हम अपनी पहुंच बताने लगते हैं, हम अपने फलां के डर बताने लगते हैं कि फलां से मेरा ताल्लुक है, तुम्हें क्या पता। तो इस तरह से पड़ोस के मामला बहुत अहमियत वाले हैं और इसकी जिंदगी के अंदर बहुत अहमियत होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की जिंदगी में मुझे और आपको थोड़ी सी उस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफ़ा वार्ड का मुहिम हमसाया एक वार्ड मीटिंग के तौर पे इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी मोहतरम मुकर्रम खान साहब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में 100 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की और बड़ी ही कामयाबी के साथ ये इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस इज्तिमा में मोहतरम मुकर्रम मौलाना जावेद अहमद बेग
रहमत बरकातुहू ने मसीरत अफरोज़ खिताब फरमाया। इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि लोग अपने पड़ोसियों के हुकूक़ की कोशिशों में लगे हुए हैं और हमारे अरकान व कारकुनान इनफरादी मुलाकातों के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर भी इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम ही अरकान व कारकुनान के अपने जवाबों को जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब करने के लिए अपनी सहयोग जहद की। जमात इस्लामी हिंद बोधन यूनिट के 4 रुकनी वफद ने सर्दी से परेशान गरीब बेघर बेसहारा अफराद में कंबलों को तकसीम किया। सर्दी की शदीद लहर के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद बोधन यूनिट की जानिब से खिदमत खल्क के तहत गरीब बेघर और बेसहारा अफराद में कंबलों की तकसीम अमल में लाएगी। ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद जिला सदर मंसूर मोहिउद्दीन की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बोधन यूनिट के सरगर्म ज़िम्मेदारान सदर जाबिर, आबिद फारूकी, सलीम बेग, आमिर जमाल, यूनुस गनी, खम आरिफ और खालिक बेग ने भरपूर हिस्सा लिया। टीम ने शहर के मुख्तलिफ हसास इलाकों नया बस स्टैंड, अम्बेडकर चौराहा, पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ओल्ड सिटी, गौशाला रोड और गंज के इलाकों का दौरा करते हुए तकरीबन 250 मुस्तहिक अफराद तक ये इमदाद पहुँचाई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने कहा कि ज़रूरतमंदों की खिदमत सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि इबादत है। इंसानियत का तकाजा है कि जो लोग महफूज घरों में रहते हुए वो खुले आसमान के नीचे सोए हुए अफराद को कभी फरामोश ना करें। शहरियों ने भी जमात इस्लामी हिंद बोधन के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि सर्द रातों में एक कंबल किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और यही खिदमत खल्क का असल मफ़हूम है। आखिर में ज़िम्मेदारान ने अहद किया कि यह सिलसिला सर्दियों भर जारी रहेगा ताकि कोई भी ज़रूरतमंद शख्स तन्हा बेयार और मददगार ना रहे। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अबू हुरैरा कौन? बहुत बड़े सहाबी रसूल है जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहते थे वो लिखिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, एक औरत बहुत ज्यादा नमाज पढ़ती है, उसी नमाज नफिल नमाज में फर्ज तो नहीं पढ़ने का नहीं था, खास तौर पर इसमें औरतों का जिक्र सुन लीजिए। क्यों कि औरतें क्या करती है, छोटी छोटी बातों पर बच्चे लड़ हुए, घर में थोड़ा सा कुछ हो गया, फौरी पड़ोसी के अपने बच्चे की तारीफ में आके पड़ोसियों से गाली गलौज करना, लड़ना झगड़ना, यहाँ तक के अब देखो एक लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है, आजू बाजू लेके मारपीट तक हो जाती है, यहाँ तक के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं। तो ये हदीस याद रखिए, ये जहन में रखिए। कभी पड़ोसी के साथ कभी गुस्सा आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, एक औरत का मामला ये है कि बहुत सारी नफिल नमाजें पढ़ती है, बहुत सारी नफिल रोजे रखती है, बहुत ही सदका और खैरात करती है, बहुत उसका चर्चा है, बहुत शोहरत है उस औरत की, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।